Hey guys, Assalamualaikum. My name is Dr. Aisa. I'm a physical therapist. Today I'm going to show you cervical vertigo stretching exercises at home. Cervical vertigo is also known as cervicogenic dizziness. So I'm not going to tell you about the pathology, physiology and the background knowledge of vertigo. I'm just going to show you some stretches that you can perform at home as well. Vertigo is caused by combinations of like infection of ear, the cervical condition, trauma, and something else. So we can manage it at home by doing some stretchings or like apply maneuver and something else. I'm going to show you some stretching that you can perform at home as well to get rid of dizziness and nauseating inflammation, and that causes so much uncomfortable for the patient. Okay, let's get started. First, you can sit at a comfortable position as you can. Then you can start it first from a simple warm up of the neck. Like you don't need to do like this. हमने इसको सिंपल इस तरह परफॉर्म करना है कि पेशेंट है उसके जो सर्विकल डिजीज के सिम्टम्स हैं वो एग्रीवेट या एलिवेटेड नहीं है। हम इसको सिंपली और स्लाइटली मॉडरेट इंटेंसिटी पे करेंगे। सबसे पहले हम इसके लिए वो स्ट्रेचेस करेंगे जो सिंपल हम घर में आम करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता इसकी कितनी इंटेंसिटी को हम कर सकते हैं। Okay, let's get started. First exercise you can perform at home is simple exercise. We can say at a slant pose. जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के लिए सिंपल हम slant pose यूज करते हैं. Simple like as this, like okay. You don't need to pull your neck backward with like high intensity. Just do it slightly and come back. Simple side rotation on both sides. Okay, this is the first exercise of stretching you can do with the warm up. Okay, the next one is side bending. You just need to bend your ear toward your shoulder. हमें सिंपल अपने ईयर को बेंड करना है अपने शोल्डर की तरफ. हमने ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी, हमने इतनी फोर्स लगानी है कि जो डिजीनेस का सिम्टम है या इतना स्ट्रेच नहीं देना कि जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो एग्रीवेट हो जाएं. लाइक सिंपली हमने क्या करना है, अपने नेक को शोल्डर की तरफ लेके आना है, अपने शोल्डर ब्लेड्स को रिलैक्स रखें और सिंपल सा स्ट्रेच दें लाइक दिस. Okay, like this. Okay, you can do it as well by sitting or by standing. Standing I'm not recommended because जब हम स्टैंडिंग में ये परफॉर्म करते हैं तो अगर सिम्टम डिजीनेस हमें आता है या डिजीनेस बहुत ज़्यादा आता है, पेशेंट को चक्कर आने लग जाते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही अनकम्फर्टेबल हो जाएगा. तो हम वो पोजीशन चूज़ करेंगे जो पेशेंट के सिम्टम है वो एग्रीवेट और एलिवेट ना करें. ओके, अब हम साइड बेंडिंग दोबारा करेंगे. Just perform it at home for several times. Slight stretching हम देंगे. Okay, then हम इसके लिए करेंगे अपर सर्वाइकल ट्रैप का स्ट्रेच. ट्रेपेजियस जो है इसमें सर्वाइकल कोई भी सर्वाइकल कंडीशन होती है तो जो ट्रेपेजियस मसल होता है वो सबसे पहले स्पैज़ में जाता है. टाइटनेस, एक अजीब सी नेक की जो कंडीशन होती है उसमें जो ट्रेपेजियस है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है. तो हम क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारा अपर ट्रेपेजियस है हम उसको स्ट्रेच देंगे. अपर ट्रेपेजियस का जो स्ट्रेच होता है वो सेम एज लाइक होता है कि जो हम नेक की साइड बेंडिंग करते हैं सेम ही इसी तरह. लेकिन इसमें हमने क्या करना होता है, नेक को बेंड करना है स्लाइड सा. अपने जो हैंड है उससे हमने इधर थोड़ा सा स्ट्रेच देना है. ये जो हमारा हैंड है हम इसको बैक पे ले जा सकते हैं या फ्रंट पे रख सकते हैं एज यू कंफर्टेबल. ओके, हम इसको रखेंगे अपने स्टमक पर, अपने हैंड को, और थोड़ा सा स्ट्रेच देंगे, लाइट इंटेंसिटी. रिलैक्स अगेन, relax, then do it simply to the other side. Relax, hold, relax again, relax. Be comfortable as you can.
Okay, the next one is levator scapulae stretch. Levator scapulae is a muscle that goes side to side as upper trapezius, that goes so stretched, uncomfortable and tighten our neck muscles. So you can perform it as well like this. अपने जो हमारा फोरम है हम उसको टुवर्ड द स्कैपुला प्लेस करेंगे like this. Okay, elevate it as well. Side rotation. Okay, the next, use your next and other hand विदिन हेड सपोर्ट, हेड को सपोर्ट देंगे और हम सिंपली अपनी चिन को टैपिंग करेंगे टुवर्ड योर एक्सिला. रिलैक्स अगेन, रिलैक्स, होल्ड इट फॉर अ वाइल. जब तक आप इसको बियर कर लें, जब तक आपके सिम्टम एक्टिवेट नहीं करते, जितने आप कंफर्टेबल हैं. इस स्ट्रेचिज़ का या फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट का रियल पर्पस ये है कि जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं उसको एलिवेट होने से बचा के मिनिमम रेंज में हम पेशेंट को इजीनेस दें, कंफर्टेबल करें. नाउ वी कैन स्टार्ट विद द आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज एज वेल. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के लिए हम पेशेंट को रिकमेंड करेंगे कि अपने हैंड को लाइक इन द फॉर्म ऑफ योर फिंगर हैंड एज वेल और palm of the hand you can use as well like this. इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे लाइक अपने पेशेंट अपनी हेड को इस तरह रोटेट करके हम फोर्स कर रहे हैं हाथ से, नेक से, लाइक इन द केस इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस. नो, इट्स अ रॉन्ग मैन्यूवर. हम क्या करेंगे, अपनी नेक को सिंपल स्ट्रेट रखेंगे, अपने पाम ऑफ द हैंड से हम इसको आगे प्रेस करेंगे और 25 to 30% हम पुश करेंगे अपने नेक को अपने हैंड की तरफ और हैंड से हम रेजिस्ट करके रखेंगे. सेम एज लाइक दिस. मैं ऑलमोस्ट 25 to 30% ही सिर्फ यहाँ पर पुश कर रही हूँ. 100% हम पुश नहीं करेंगे, फोर्स हम लगाएंगे सिर्फ 25. सिंपली एज यू कैन यूज़ योर बोथ हैंड इन द फॉर्म ऑफ दिस. प्लेस योर हैंड इन द बैक ऑफ योर हेड एंड देन पुश अगेन. Same as like this. Perform it several times at home. Now you can put your hand in the lateral side of your head. Resist, push, स्लाइड पुश देंगे और अपने हाथ से रेजिस्ट करेंगे. On the other side, again. Okay, just for 4. After isometric exercises we can use a simple shoulder blade squeeze stretch. Scapular squeezing भी कहते हैं और shoulder squeezing भी कहते हैं. मैन्यूवर परफॉर्म करते हैं like they said like this. No, this is always wrong. हम क्या करेंगे, सिंपल अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, आपने जो हैंड्स हैं उनको स्टमक पे प्लेस करेंगे. यू कैन प्लेस योर हैंड्स ऑन चेयर, ऑन सीटर, ऑन योर थाइज एज वेल. अपने हैंड्स को स्टमक पर प्लेस करेंगे, सिंपली अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे और स्क्वीज करेंगे. सेम एज लाइक दिस. नाउ यू कैन सी आई जस्ट स्क्वीज माई शोल्डर, नॉट माई अपर बॉडी एज वेल. Relax again. This is maximum. Relax. Dizziness is a traumatic condition that symptoms doesn't appear at time at all. It appears after months or years. इसको हम घर में भी ट्रीट कर सकते हैं. घर में ट्रीट करने का सिंपल फिजिकल थेरेपी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, यही इसका ट्रीटमेंट है. आफ्टर एप्ले मैनूवर और अदर मैनूवर यू कैन डू इट एज वेल टू गेट रीड ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ योर नेक मसल्स, अनकम्फर्टेबल कंडीशन दैट पीपल डोंट स्लीप एज वेल. People get so confused, uncomfortable because of the neck stiffness. नेक की जो मसल्स हैं वो इतने स्टीफ और स्ट्रेच हो जाते हैं. जो पेशेंट है वो इन चीज़ों को या अपनी ADL को परफॉर्म करने में बहुत ही अनकम्फर्टेबल और कन्फ्यूज रहता है. इसको हम घर में इस तरह भी ट्रीट कर सकते हैं. आई होप यू लाइक माई वीडियो. सो इट गोना बी सो इन्फॉर्मेटिव फॉर अस. होप यू लाइक इट. सी यू इन द नेक्स्ट.